Walaikum salam, sir. Ji, can you see the slides? Yes, sir. Yeah, fine. So last week especially, in the three classes, we started initially sampling, then we discussed about sampling, different terminologies, different concepts, different types and methods which are commonly used in sampling. Whenever we are interested to take a sample, we are interested to select a sample. After that, we discussed different terms used in statistical inference. Especially, we divided statistical inference into two branches. One, we call it estimation or estimation of parameters. So right now you are looking on the slide, statistical inference with the title estimation. So it's the first branch of statistical inference. In second phase, in the next chapter, we will study about the second branch of statistical inference, and that is testing of hypothesis. So already we discussed about estimation. We separate it into two directions. For example, point estimation and then interval estimation. We discussed about estimate. We discussed about estimator. We discussed about point estimate, point estimator. And today we are going to start uh, confidence intervals, which is the most important part of statistical inference. So simply you have to remember the confidence intervals regarding whatever the, for example, sometimes we are interested to have a confidence interval about population mean. Sometimes we are interested to have a confidence interval about population proportion. So we know about different parameters of a population. So confidence interval will always be linked to a population parameter. जी, आवाज आ रही जी आपको सबको? Yes, sir. जी, तो अब तक जी मैंने जो बोला वो आप लोगों को सुनाई दिया या नहीं? आवाज नहीं आई जी? No, sir. बिल्कुल नहीं सुन है जी? सर अभी आवाज बंद हुई थी जी आपकी. जी, चलें। मैं जी रिपीट कर देता हूँ। देखें, इनिशियली वी डिस्कस्ड अबाउट इन द लास्ट two lectures. We discussed about statistical inference. Then we divided statistical inference into two branches. One we call it estimation or estimation of parameters, and second one testing of hypothesis. So today we are going to start the first branch of statistical inference, which is estimation. The second branch of statistical inference, which is testing of hypothesis. We will discuss it in detail in the next chapter. So we discussed in the last lecture about point estimation, which are point estimation, interval estimation, which are two groups of estimation.
We also discussed about estimate, point estimate, interval estimate, and finally we discussed about confidence intervals. जी आवाज आ रही थी? Yes, Yes, sir. sir. Are you? जी चलें जी गुड. So today we have to start about confidence intervals. तो याद रखें एक होता है पॉइंट एस्टिमेट. ठीक है, आप जिस तरह एक्स बार फाइंड आउट करते हैं ना, ऑलवेज यू विल गेट अ सिंगल वैल्यू. आप एस फाइंड करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, you will get a single computed value. So any computed value, single computed value based on sample information, that is point estimate. यानी जो आपके पास एक सिंगल वैल्यू कंप्यूट होके आती है वो पॉइंट एस्टिमेट कहलाता है. ठीक है, आज हम उस पॉइंट एस्टिमेट से एक स्टेप आगे जा रहे हैं कि हम इंटरवल फाइंड करना जा रहे हैं. ठीक है, कि वो क्या मेथड होगा, वो क्या क्राइटेरिया होगा कि जिसमें हम किसी भी अननोन पैरामीटर, याद रखें कॉन्फिडेंस इंटरवल विल ऑलवेज बी लिंक्ड विद अ पॉपुलेशन पैरामीटर. तो हमेशा हम जो कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात करेंगे ये किसी ना किसी पॉपुलेशन पैरामीटर के साथ लिंक होता है. हम किसी पॉपुलेशन पैरामीटर विच इज अननोन and we are interested to have its value in the form of an interval, and on that interval we must have some high confidence, that is called confidence interval. ठीक है, तो देखें आपके सामने जो मैं बार बार पॉपुलेशन पैरामीटर की बात कर रहा हूँ. पैरामीटर मीन पॉपुलेशन मीन, पैरामीटर मीन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, population means of two populations, population means of more than two populations. ठीक है, इसी तरीके से population proportions in case of two or more populations. ठीक है, तो जो मुख्तलिफ हम टर्म्स यूज करते हैं, कभी मीन के हवाले से, कभी हम स्टैंडर्ड डेविएशन के हवाले से, कभी वेरिएंस के हवाले से, कभी प्रोपोर्शन के हवाले से. ठीक है, तो जब हम इन्हें लिंक करते हैं किसी पॉपुलेशन के साथ, ठीक है, तो ये कहलाते हैं पैरामीटर्स. तो आज हम जो कॉन्फिडेंस इंटरवल्स बनाने जा रहे हैं या जिन्हें हमने एस्टिमेट करना है विद द हेल्प ऑफ सैंपल डाटा, दीज आर 100 into 1 minus alpha % confidence interval about population mean. और population mean को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से. ठीक है, so remember there would be three different scenarios. There would be three different situations when we need to compute confidence interval about mu. तो आपको ये नजर आ रहा है कि 1, 2, 3 की फॉर्म में वो डिफरेंट सिचुएशंस आपके सामने हैं. जी आवाज आ रही जी? Yes, sir. जी मैं बार बार आपसे इसलिए पता करता रहूंगा क्योंकि मैं आज घर पे हूँ, तो ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी का जो नेट होता है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है. घर का आपको भी ये इश्यूज आते होंगे यकीनन. ठीक है, तो मैं इसलिए आपसे बार बार पूछता रहूंगा. देखें फर्स्ट कंडीशन क्या है, व्हेन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन. अब याद रखें कि हम वैसे स्टैंडर्ड डेविएशन को एस से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, एस क्या है, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन. ठीक है, एस इज द नोटेशन ऑफ सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन. और जब हम कहते हैं ना कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, तो उसकी नोटेशन है सिग्मा. ये विद इन ब्रैकेट आपको नजर आ रहा है. ठीक है, तो हम पहली जो सिचुएशन बताएंगे कि जब हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल पॉपुलेशन मीन म्यू के लिए फाइंड आउट करना है, तो उसमें पहली कंडीशन ये हो सकती है कि यू आर गिवन द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, यू आर गिवन द वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन. ठीक है, दूसरी चीज ये हो सकती है कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा अननोन हो, बट सैंपल साइज एन, जिसे हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज लार्ज. लार्ज जब भी हम कहेंगे इसका मतलब ये होगा कि सैंपल साइज या तो 30 है या 30 से अबव है. ठीक है, और जो थर्ड सिचुएशन बनेगी वो है व्हेन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज अननोन एंड सैंपल साइज इज स्मॉल. और सैंपल साइज स्मॉल का मीनिंग ये होगा कि जो स्मॉल एन है इट इज लेस देन 30.
ठीक है, तो ये 3 डिफरेंट सिचुएशंस मैंने आपके सामने रखी हैं। पहली कि जब सिग्मा नोन हो, दूसरी जब सिग्मा अननोन हो बट n इज लार्ज, n लार्ज मीन n is 30 or above, and third situation when sigma is unknown and sample size n is small। ठीक है जी। अब ये देखें कि जो पहली 2 सिचुएशंस हैं, याद रखें कि उसमें हम z टेस्ट यूज करते हैं या z स्टैटिस्टिक यूज करते हैं, जबकि जो थर्ड सिचुएशन है जिसमें सिग्मा भी अननोन था और सैंपल साइज भी स्मॉल था, सो देयर इज ओनली वन सिचुएशन वेयर वी विल अप्लाई टी स्टैटिस्टिक। ठीक है, तो याद रखना है एक है z और एक है t। ठीक है, इनके जो पीछे जब हम z की बात करेंगे तो हमारे पास एक पॉपुलेशन, एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका नाम है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो जब आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर आप शेप को देखें, ठीक है, तो वो आगे चल के मैं किसी ना किसी स्लाइड के ऊपर आपको दिखाऊंगा। वो होती है जिस तरह हमने सिमेट्री को डिस्कस किया था ना, कि जिसमें सिमेट्री के अंदर अगर आप कर्व को, यानी अगर आप किसी भी डेटा को प्लॉट करें, यू विल गेट अ बेल शेप्ड कर्व। तो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है इसे अगर आप एक कर्व के जरिए शो करें तो ये एक बेल शेप्ड कर्व होती है। जिस तरह सिमेट्री के अंदर मीन, मीडियन, मोड इक्वल होते हैं, इसी तरह जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो उसका मीन, मीडियन, मोड इक्वल होते हैं। ठीक है, इसके अलावा और बहुत सारी इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं, लेकिन हमें उनकी डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। आपने सिंपली याद रखना है कि इन फर्स्ट 2 सिचुएशंस वी आर अप्लाइंग z स्टैटिस्टिक और इन थर्ड सिचुएशन वी आर अप्लाइंग t स्टैटिस्टिक। ठीक है, अब जो फर्स्ट है व्हेन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज नोन, तो आपके सामने कॉन्फिडेंस इंटरवल लिखा हुआ है। देखें, जब हम कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात करते हैं ना, तो जिस पैरामीटर के लिए आप फाइंड आउट कर रहे होते हैं वो आपको मिडल में नजर आएगा। जिस तरह आपको मिडल में म्यू नजर आ रहा है और म्यू के लेफ्ट साइड पे लेस देन इक्वल टू का साइन, उसके राइट साइड पे भी लेस देन इक्वल टू का साइन। इसका मतलब ये हुआ, इस लेस देन इक्वल टू को दोनों साइड पे जब हम लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो म्यू की वैल्यू है, ये लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू गिवन है उस वैल्यू, और जो राइट साइड पे आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है, इन 2 फॉर्मूलाज के दरमियान लाई करती है। ठीक है, हम इसे यूं कह सकते हैं कि अगर हम लेफ्ट साइड को L कह दें जो फॉर्मूला लिखा हुआ, जो राइट साइड है उसे U कह दें, अपर, यानी एक लोअर एक अपर, तो हम ये कह सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ म्यू लाइज बिटवीन L यानी लोअर एंड U यानी अपर। जी, इतनी बात जी क्लियर है? Yes, sir. जी, अब देखें लेफ्ट साइड पे अगर आप गौर करें, अगर होता सिर्फ x बार, राइट साइड पे भी अगर आप गौर करें तो वहां पर भी x बार आपको नजर आ रहा है। लेफ्ट साइड पर x बार में से माइनस किया गया है एक वैल्यू को और राइट साइड पर प्लस किया गया है उसी वैल्यू को, और वो वैल्यू क्या है? z अल्फा बाय 2 सिग्मा डिवाइडेड बाय n स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये वो वैल्यू है जो हम सैंपल मीन यानी पॉइंट एस्टिमेट में से माइनस करते हैं तो हमें लोअर वैल्यू मिल जाती है, और यही z अल्फा बाय 2 सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट n जब हम ऐड करते हैं पॉइंट एस्टिमेट x बार में, ठीक है, तो हमें अपर वैल्यू मिल जाती है। तो जब आपके पास एक म्यू की लोअर वैल्यू मिल गई, एक अपर मिल गई, नाउ वी कैन से the value of population parameter mu is lying between lower and upper limit। ठीक है, तो उस लोअर और अपर लिमिट के दरमियान किसी जगह पे लाई कर रही होती है। अच्छा, इसी कॉन्फिडेंस इंटरवल को, ये इसकी है लॉन्गर फॉर्म है कि हम इसे कंप्लीट फॉर्म कहते हैं। ठीक है, हम इस कंप्लीट फॉर्म की बजाय हम इसकी एक शॉर्टर फॉर्म यूज करते हैं। वो शॉर्टर फॉर्म क्या है? देखें, आपने क्या किया है, आपने x बार में से एक वैल्यू को माइनस किया है और उसी वैल्यू को x बार में ऐड किया है। तो जो आगे आपको रेड कलर में OR नजर आ रहा है, और
तो हम ये फॉर्म इजीली जहन में रख सकते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल के हवाले से, x बार माइनस जी अल्फा बाई टू सिग्मा ओवर एन स्क्वायर रूट और x बार प्लस जी अल्फा बाई टू सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन। तो हम इसे यूं पढ़ते हैं x बार प्लस माइनस जी अल्फा बाई टू सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप x बार में से इस वैल्यू को माइनस करेंगे यू विल गेट अ लोअर लिमिट। लोअर लिमिट किसकी? म्यू की। और यही वैल्यू जी अल्फा बाई टू सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन, व्हेन यू विल ऐड दिस वैल्यू इन सैंपल मीन x बार यू विल गेट अपर लिमिट, एंड दिस अपर लिमिट किसकी है? दिस इज अपर लिमिट ऑफ पॉपुलेशन मीन म्यू। जी इतनी बात जी क्लियर है? Yes, sir. जी तो अब आपने सिंपली ये याद रखना है कि पॉइंट एस्टिमेट हमारे पास था x बार। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल हमारा क्या बना? x बार माइनस प्लस जी अल्फा बाई टू सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट n। और देखें ये सिग्मा के आने का मतलब ये है कि सिग्मा आपके पास मौजूद होना चाहिए, और मौजूद होने का मतलब ये है कि ये पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है। इट्स अ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। ये जब आपको किसी भी पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ होगा देन वी कैन अप्लाई दिस कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है। हम सेकंड पे आते हैं। सेकंड में क्या है? व्हेन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज अननोन एंड सैंपल साइज स्मॉल n इज लार्ज। देखें वही कॉन्फिडेंस इंटरवल है, ठीक है, लेकिन इसकी फॉर्म मैं इसे जरा शॉर्टर फॉर्म में भी लिखता हूं। ये देखेंगे जी। अब ये देखें कि जब आपके पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा अननोन है और सैंपल साइज n लार्ज है, यानी 30 या 30 से ज्यादा है। याद रखें कि जब हम पहली कंडीशन पे होते हैं ना, n डजेंट मैटर, n चाहे स्मॉल हो लार्ज हो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने वही कॉन्फिडेंस इंटरवल यूज करना है। लेकिन जब आपके पास सिग्मा अननोन हो, n लार्ज होने का मतलब आप z यूज कर रहे होते हैं, n के स्मॉल होने का मतलब कि आप t की तरफ चले जाते हैं, t स्टैटिस्टिक यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा अब जब सिग्मा अननोन है देन वी नीड टू यूज इट्स एस्टिमेट। जब सिग्मा अननोन है तो हमने उसका एस्टिमेट यूज करना है, ठीक है। और जब एस्टिमेट यूज करेंगे तो एस्टिमेट दो तरह से यूज होंगे, या तो कैपिटल S या स्मॉल s। अब कैपिटल S उस वक्त जब n लार्ज होगा और स्मॉल s उस वक्त जब n स्मॉल होगा, ठीक है। नीचे सबसे एंड पे आपको कैपिटल S का फॉर्मूला भी दिया हुआ है और स्मॉल s का फॉर्मूला भी दिया हुआ है। आप याद रखें कि टिल नाउ वी यूज्ड द फर्स्ट फॉर्मूला। जब हमने मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में स्टैंडर्ड डेविएशन को डिस्कस किया था या वेरिएंस को डिस्कस किया था तो हमने ये फर्स्ट फॉर्मूला यूज किया था, सेकंड फॉर्मूला अभी हमने यूज किसी जगह नहीं किया। दोनों में डिफरेंस क्या है आपको क्लियर कट नजर आ रहा है कि स्क्वायर रूट दोनों का एज इट इज, समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर एज इट इज, इन डिनोमिनेटर देयर इज अ चेंज, ठीक है। कैपिटल S में डिनोमिनेटर में स्मॉल n यूज होता है जबकि स्मॉल s में n माइनस वन यूज होता है, ठीक है जी। तो जो सेकंड नंबर पे जी, व्हेन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज अननोन एंड सैंपल साइज n इज लार्ज, इंटरवल वही है, सिर्फ हम ऊपर वाला ही है, सिर्फ हमने सिग्मा को रिप्लेस कर दिया s के साथ, कैपिटल S के साथ, ठीक है। तो और उसकी अब जो शॉर्टर फॉर्म बनी है आपकी कॉन्फिडेंस इंटरवल की, वो क्या बनी? x बार माइनस प्लस जी अल्फा बाय टू s ओवर स्क्वायर रूट n, ठीक है जी। दोनों में जी फर्क क्लियर हो गया, नंबर 1 में और नंबर 2 में? Yes, sir. 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 Yes, s
जी ठीक है, सिंपली स्मॉलर डिफरेंस के पहले में सिग्मा यूज हो रहा है, दूसरे में एस यूज हो रहा है। सिग्मा उस वक्त जब पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होगा, और एस उस वक्त जब आपको सिग्मा गिवन नहीं था, आपको मालूम नहीं था, आपको जो स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ था वो सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन था, लेकिन एन लार्ज था। तो आपने क्या किया, आपने सिग्मा को रिप्लेस कर दिया कैपिटल एस के साथ, ठीक है। सो दिस इज द चेंज। थर्ड वन, सिग्मा इज अननोन एंड सैंपल साइज एन इज स्मॉल। जब भी स्मॉल का लफ्ज आएगा, इसका मतलब ये है कि एन लेस देन 30 की हम बात कर रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स में जब भी कभी आप सुने कि एन लार्ज, तो एन लार्ज का मतलब होता है 30 एंड अबव। स्मॉल का मीनिंग है लेस देन 30, ठीक है। अच्छा, तो मैंने क्या आपको कहा था कि जब हम पहली दो कंडीशंस हैं उसमें हम जी स्टैटिस्टिक यूज कर रहे होते हैं, और जो थर्ड कंडीशन है उसमें हम टी स्टैटिस्टिक यूज कर रहे होते हैं। याद रखें कि जो टी है ये भी इसी तरह एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, जिसे हम स्टूडेंट टी कहते हैं आमतौर पर, ठीक है। अब ये जो है z को हमने यहाँ पर रिप्लेस किया है t के साथ, जिस तरह वहां z अल्फाबेट 2 यूज हुआ, यहाँ पर भी t अल्फाबेट 2 आ गया। लेकिन एक चीज एक्स्ट्रा आपको नजर आ रही है पैरेंथेसिस के अंदर, n-1। वो आगे चल के हम जब z, याद रखें कि ये जो z है और जो t है, दीज आर टेबल वैल्यूज। जिस तरह आपके पास एल्गोरिथमिक टेबल्स होते हैं ना, लॉग टेबल्स होते हैं, इसी तरह आपके पास ये z और t या f या chi स्क्वायर, दीज आर डिफरेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, और इनके टेबल्स अवेलेबल हैं, ठीक है, स्टैटिस्टिकल टेबल्स। हम उन स्टैटिस्टिकल टेबल्स से z की वैल्यू या t की वैल्यू डिटरमिन करेंगे, ठीक है। ये आगे चल के मैं आपको वो स्टैटिस्टिकल टेबल्स भी दिखाऊंगा फिर। अच्छा, तो यहाँ पर जी क्या चेंज आई कि जहां पर z अल्फाबेट 2 था वहां पर आ गया t अल्फाबेट 2 विद इन पैरेंथेसिस n-1, ठीक है। ये चेंज आई, और जो कैपिटल S था वो स्मॉल s में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसी को जब आप शॉर्टर फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, तो इसकी शॉर्टर फॉर्म क्या बनेगी आपके पास, x बार माइनस प्लस t अल्फा बाय 2 विद इन पैरेंथेसिस n-1 इनटू स्मॉल s ओवर स्क्वायर रूट n, ठीक है। मैं इसे यहां पर लिख देता हूं। जी क्लियर हो गया जी के अब जो थर्ड वन है वो आपके पास x बार माइनस प्लस टी अल्फा बाय 2 विद इन पैरेंथेसिस n-1 s ओवर स्क्वायर रूट n। तो ये जो एंड पे मैंने और के बाद 3 कॉन्फिडेंस इंटरवल्स लिखे हैं, आपने इन 3 कॉन्फिडेंस इंटरवल्स को ध्यान में रखना है जी। इतना जी क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. जी ठीक है जी। अब हम आते हैं जी, एक एग्जाम्पल हम सॉल्व करते हैं। बट वी गिवन इन दिस एग्जाम्पल द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द अमाउंट्स poured into bottles by an automatic filling machine is 1.8 ml। देखें पहली लाइन के अंदर ही उसने आपको कहा है द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द अमाउंट्स poured into bottles by an automatic filling machine is 1.8। कि जे एक रेगुलेटिंग सिस्टम है और वो बॉटल्स के अंदर कोई अमाउंट जो है वो ड्रॉप कर रहा है, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह मुख्तलिफ जार्स के अंदर फिलिंग होती है, या पेप्सी या कोक की जो बॉटल्स हैं उनकी फिलिंग होती है, और वो एक मशीन को ज़ाहिर रेगुलेट कर दिया जाता है कि बॉटल्स जी 1 लीटर की नीचे फिक्स हुई हैं, तो ज़ाहिर है उसने 1 लीटर के इक्विवेलेंट अमाउंट, ठीक है, अमाउंट उसके अंदर ड्रॉप कर देनी है। अब ये देखें कि जब वो 1 लीटर ड्रॉप करता है,
जरा आप मुझे बताएं कि क्या एग्जैक्टली 1 लीटर ही होता है? 1 लीटर का मतलब है 1000 ml। जी, क्या वो एग्जैक्टली 1000 ml होता है? नो सर। जी, नो का मतलब क्या हुआ फिर? देखें, बॉटल्स जब हम कहते हैं ना कि ये बॉटल 1500 ml है, तो वो 1500 ml एग्जैक्टली नहीं होती, हो भी सकती है, उससे एक 2 ml ऊपर भी जा सकती है, एक 2 ml नीचे भी जा सकती है। तो वो जो एवरेज फिलिंग है वो कितनी है? 1000 ml। एवरेज फिलिंग कितनी है? 1500 ml। लेकिन वो जो एक 2 यूनिट का ऊपर नीचे जाना है, दिस इज वेरिएशन। ठीक है, ये वेरिएशन है, और ये वेरिएशन वो स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्म में आपको बता रहा है, और उसकी वैल्यू उसने कितनी बताई है? द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द अमाउंट्स poured into bottles by an automatic filling machine is 1.8 ml। ठीक है, कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है वो 1.8 है। अब ये देखें, इस 1.8 ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, और स्टैंडर्ड डेविएशन जब भी बात आएगी आपके जहन में उसकी नोटेशन आनी चाहिए कि ये एस है, कैपिटल एस है, स्मॉल एस है, या सिग्मा है। तो अब आप मुझे बताएं यहां से अंडरस्टैंड करके कि क्या यहां पर कोई सैंपल की बात हुई है ये इस 1.5 लाइन के अंदर? नो सर। देखें, कोई सैंपल की बात नहीं हुई है। जब तक सैंपल की बात ना हो, जो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दिया जाता है वो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ठीक है, अच्छा, तो ये जो आपको 1.8 गिवन है, दिस इज पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसकी नोटेशन क्या हम यूज करेंगे? सिग्मा। ठीक है, आगे क्या कहा गया? द अमाउंट्स ऑफ फिल इन अ रैंडम सैंपल ऑफ बॉटल्स वर। अब वो कहते हैं कि हमने एक रैंडम सैंपल लिया, ठीक है, बॉटल्स का, और उनके अंदर जो फिलिंग हुई थी वो कितनी थी? 481, 479, 482, 480, 477, 478, 481 एंड 482। ठीक है, ये उनके अंदर फिलिंग हुई थी। सपोज द पॉपुलेशन ऑफ अमाउंट्स ऑफ फिल इज नॉर्मल। कह रहे जी कि हमने ये अज्यूम कर लिया है कि ये इन पॉपुलेशन की जो फिलिंग की अमाउंट है वो नॉर्मल है। नॉर्मल से क्या मुराद होती है कि वो बेल शेप्ड है। अगर हम उसे ड्रॉ करें तो वो एक बेल शेप्ड है। ठीक है, बेल शेप्ड क्या होती है? जिसमें मीन, मीडियन, मोड इक्वल होते हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारी करेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, कह रहे जी कंस्ट्रक्ट 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल अबाउट मीन विद इन पैरेंथेसिस म्यू मीन अमाउंट इन ऑल बॉटल्स फिल्ड बाय द मशीन। कहते जी वो मशीन जितनी भी बॉटल्स फिल करेगी उनके अंदर जो एवरेज फिलिंग हो रही है, आपने 90% पे कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है। जी, ठीक है, तो देखें हमें पहली ही लाइन के अंदर सिग्मा की वैल्यू मिल गई थी। तो देखें हमारे जहन में जब भी कॉन्फिडेंस इंटरवल म्यू का आएगा, हमारे सामने ये तीन फॉर्मूलाज, तीन उसकी शेप्स जो हैं वो आनी चाहिए कि क्या सिग्मा दिया हुआ है, क्या सिग्मा अननोन है, अगर अननोन है तो क्या एन लार्ज है या स्मॉल है। तो जब ये तीन चीजें आप आइडेंटिफाई कर लेंगे किसी भी क्वेश्चन के अंदर, तो इसका मतलब ये होगा कि आप मिस्टेक करने का जो चांस है वो अब नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहां पर भी जो पहली लाइन में जब आप अंडरस्टैंड कर लेंगे कि वी आर गिवन द वैल्यू ऑफ सिग्मा, तो आप पहले वाला जो कॉन्फिडेंस इंटरवल था वही यूज करेंगे। ठीक है, तो मैंने जी नोट कर लिया सोल्यूशन के अंदर कि एन हमें गिवन था, नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी गिवन है? 8। सिग्मा हमें 1.8 गिवन है। ठीक है, हमने इन 8 वैल्यूज को एक वेरिएबल x के अंडर लिखा, उनको ऐड किया तो 3840 आपको सम मिल गई। हमने x बार का फॉर्मूला समेशन x ओवर n, ठीक है, 3840 को 8 से डिवाइड किया, आपको x बार की वैल्यू मिल गई 480। ठीक है, अच्छा, अब ये देखें हमने लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने ये चीज बार बार डिस्कस हमने की थी कि जो आपको हाई कॉन्फिडेंस दिया जाता है
ठीक है, 90% या 95% या 99%, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 माइनस अल्फा से। ठीक है, तो आपको यहाँ पर वो कॉन्फिडेंस कितना गिवन था, 90%, तो हमने लिख लिया जी 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 0.90। आपने यहां से अल्फा की वैल्यू निकाल ली। अल्फा कैसे निकाला कि अल्फा को राइट साइड पे ले गए और 0.90 को लेफ्ट साइड पे ले गए, 1 माइनस 0.90, अल्फा की वैल्यू आपको मिल गई 0.10। आपको वैल्यू चाहिए थी जी अल्फा बाय 2 की। ठीक है, आपको वैल्यू चाहिए जी अल्फा बाय 2 की। हमने अल्फा की वैल्यू लगाई 0.10 डिवाइडेड बाय 2, ये क्या बन गया, ये बन जाएगा जी 0.05। ठीक है, अब वक्ती तौर पे आप इसकी वैल्यू जरा याद रख लें कि जी 0.05 के ऊपर जो वैल्यू होती है वो 1.645 हमेशा होती है। ठीक है, कि जब भी जी 0.05 आएगा उसकी वैल्यू 1.645 है। ठीक है, ये मैं अभी जो इसका स्टैटिस्टिकल टेबल है उससे आपको बताऊंगा, लेकिन वक्ती तौर पे इसकी वैल्यू सिंपली आप ज़हन में रख लें। जी, इतनी जी बात क्लियर है? Yes, sir. यस सर। Yes, जी, sir. अच्छा, एक तो है इसे स्टैटिस्टिकल टेबल की मदद से हम इसे फाइंड आउट कर लेंगे 1.645 को। दूसरा है, अगर आप आर को यूज कर रहे हैं तो आर कब काम आएगा, आप आर को भी यूज करते हुए उसमें अगर ये कमांड लिखें, मैंने आगे दी हुई है, यूजिंग कमांड क्यू नॉर्म विद इन पैरेंथेसिस आप लिख दें 1 माइनस अल्फा कितना था 0.1, उसे 2 पे डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो आपको यही वैल्यू 1.645 मिल जाएगी। ठीक है जी, अच्छा, जब ये आपके पास सारी चीजें आ गई, सारी चीजें आपके पास मौजूद हैं, अब हमने क्या लिखना है, जो कॉन्फिडेंस इंटरवल की जनरल फॉर्म है, और वो जनरल फॉर्म क्या है, 100 इंटू 1 माइनस अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल अबाउट पॉपुलेशन मीन। हमेशा कंडीशन उसके साथ जरूर लिखें कि ये पहली कंडीशन है, दूसरी है या तीसरी है। तो इस एग्जाम्पल के अंदर कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है, फर्स्ट कंडीशन, व्हेन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज नोन। ठीक है, तो हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल लिखा। देखें, ये इसकी लेंथी फॉर्म है, आप ये लेंथी फॉर्म लिखें या शॉर्ट फॉर्म लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें उसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट से मतलब होता है। ठीक है जी, तो मैंने यहाँ पर जानबूझ के कि आपको तमाम उसके जो स्टेप्स हैं वो क्लियर हो जाएं, हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल लिखा म्यू सेंटर में, लेफ्ट साइड पे एक्स बार माइनस जी अल्फा बाई 2 सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन, ये उसकी लोअर लिमिट, और अपर लिमिट एक्स बार प्लस जी अल्फा बाई 2 सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन। एक्स बार की वैल्यू हमने पुट की 480, जी अल्फा बाई 2 ऊपर अभी हमने फाइंड आउट किया था 1.645, वो वैल्यू पुट की, सिग्मा गिवन था 1.8 वो पुट किया, एन 8 पुट किया, राइट साइड पर भी यही वैल्यूज पुट की। जब इन्हें सॉल्व किया तो हमें लोअर लिमिट 478.95 मिल गई, अपर लिमिट 481.05 मिल गई। जी, क्लियर है जी? Yes, जी, sir. क्लियर है? Yes, sir. जी, अगर किसी के पास इस वक्त लैपटॉप ऑन है, ठीक है, तो और उस पे आर आपने इंस्टॉल किया हुआ है, आर सॉफ्टवेयर, तो आप फौरी तौर पे क्यू नॉर्म QNORM विद इन पैरेंथेसिस 1 माइनस 0.1 डिवाइडेड बाय 2 लिख के जरा चेक कर लें और मुझे साथ ही कंफर्म कर दें जी हाँ जी वाकई यही वैल्यू आती है। जी, अच्छा, तो जी इसमें जी कोई कंफ्यूजन किसी किस्म की? No, sir. अच्छा, चलें, अब ये देखें, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया था, आपसे पूछा गया था ऊपर अगर एग्जाम्पल की लास्ट 1.5 लाइन अगर देखें, कंस्ट्रक्ट 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल आपसे पूछा गया था। अगर मैं एक चीज इसमें एक्स्ट्रा पूछ लेता, मैं आपसे पूछता जी कंप्यूट द पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन म्यू, फिर क्या करते आप, कंप्यूट द पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन म्यू।
जी देखें जी, पॉपुलेशन मीन म्यू, उसका उसका पॉइंट एस्टिमेट क्या होता है? उसका पॉइंट एस्टिमेट है सैंपल मीन। सैंपल मीन, और सैंपल मीन हमने यहाँ पर ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ है, एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन, ठीक है, 3840 डिवाइड बाय 8, 480। तो पॉइंट एस्टिमेट इसमें क्या होगा? 480, ठीक है। अगर आपसे जब भी किसी क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाए कि आप पॉइंट एस्टिमेट फाइंड करें पॉपुलेशन मीन का, तो उसका पॉइंट एस्टिमेट क्या होता है? सैंपल मीन। और सैंपल मीन आपको पता है एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन होता है। उसकी मदद से जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी द पॉइंट एस्टिमेट, ठीक है। आप देखें जो आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड किया, आपने उस पॉइंट एस्टिमेट 480 में से एक वैल्यू माइनस की और वही वैल्यू ऐड की। माइनस करने से आपको लोअर लिमिट मिल गई, ऐड करने से आपको अपर लिमिट मिल गई, ठीक है। तो इसी तरह जी आप नेक्स्ट एग्जांपल पे जाएं तो इसमें क्या है? इन एन एफर्ट टू एस्टिमेट द मीन अमाउंट स्पेंट पर कस्टमर फॉर डिनर एट अ मेजर एटलांटा रेस्टोरेंट, data were collected for a sample of 49 customers. Assume population standard deviation of $5। जी अब ये देखें फर्स्ट 3 लाइंस, उसमें आपने ये देखना है कि आपको गिवन क्या कुछ है, ठीक है। आपसे कहा गया था इन एन एफर्ट टू एस्टिमेट द मीन अमाउंट स्पेंट पर कस्टमर, यानी ये हम एस्टिमेट करना चाहते हैं कि जो कस्टमर्स डिनर के लिए मेजर एटलांटा रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वो ऑन एवरेज कितना खर्च करते हैं, ठीक है। फॉर अ सैंपल ऑफ 49 कस्टमर्स, तो 49 कस्टमर्स का एक सैंपल लिया गया। अज्यूम पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ $5। कहते जी कि जो कस्टमर्स हैं वो जितना खर्च करते हैं उनमें जो वेरिएशन है वो $5 का है, ठीक है जी। तो ये चूंकि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, सो इट्स द वैल्यू ऑफ सिग्मा। एक तो आपको सिग्मा दिया हुआ है 5, दूसरा आपको सैंपल साइज स्मॉल एन आपको गिवन है 49। अब ए पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है? एट 95% कॉन्फिडेंस व्हाट इज द मार्जिन ऑफ एरर? मार्जिन ऑफ एरर आपसे पूछा गया है। तो याद रखें ये जो हम पिछली एग्जांपल में भी हमने किया था, एक्स बार यानी विच इज पॉइंट एस्टिमेट। पॉइंट एस्टिमेट एक्स बार में से जो वैल्यू माइनस कर रहे होते हैं या राइट साइड पे वही वैल्यू ऐड कर रहे होते हैं, दिस इज कॉल्ड मार्जिन ऑफ एरर, ठीक है। देखिए ना, आपने फॉर एग्जांपल एक चीज को फिक्स किया हुआ है कि ये 1500 ml फिलिंग होनी चाहिए, लेकिन वो जितनी कम होती है या जितनी उससे ऊपर जाती है, दिस इज एरर, ये एरर कहलाता है, ठीक है। तो यहां पर आपने वो मार्जिन ऑफ एरर कैसे फाइंड आउट करना है? जी अल्फा बाय 2 सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन की मदद से, ठीक है। अच्छा, इसी का बी पार्ट आपसे पूछा गया है, इफ द सैंपल मीन इज, कह रहे जी कि अगर लोग जो 49 का सैंपल लिया 49 कस्टमर्स का, वो कितना खर्च कर रहे हैं? $24.80 खर्च कर रहे हैं अपने डिनर के ऊपर। व्हाट इज द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन मीन? हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल पॉपुलेशन मीन का फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें जी गिवन था N49, सिग्मा हमें गिवन था 5, एक्स बार ये एंड पे जो उसने बता दिया 24.80, ये सैंपल मीन की वैल्यू है। 1 माइनस एल्फा 95% यानी 0.95, यहां से हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड कर ली 0.05। तो जी अल्फा बाय 2 यानी जी अल्फा की वैल्यू पुट की 0.05, उसे 2 पे डिवाइड किया। आपने कमांड वही यूज की क्यू नॉर्म, विद इन पैरेंथेसिस आपने लिखा 1 माइनस अल्फा की वैल्यू पुट की 0.05 डिवाइडेड बाय 2। अब आपको वैल्यू मिल जाएगी 1.96, ठीक है। पिछली जब हमने अल्फा 0.10 पुट किया था हमें वैल्यू मिली थी 1.645। जब आप अल्फा 0.05 पुट करेंगे यू विल गेट अ वैल्यू 1.96,
ठीक है, ये तो वो चीजें थी जो हमने या तो दी हुई थी या आर सॉफ्टवेयर की मदद से कमांड को यूज किया क्यू नॉर्म को, और हमने जी की वैल्यू हासिल कर ली। ए पार्ट में आपसे पूछा गया था मार्जिन ऑफ एरर, और मार्जिन ऑफ एरर का फॉर्मूला क्या है, जी अल्फा बाय 2 सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन। सिग्मा उस वक्त जब सिग्मा नॉन होगा, अदरवाइज इसकी जगह कैपिटल एस आएगा या स्मॉल एस आएगा, ठीक है ना, वो चेंज हो जाएगा। जी अल्फा बाय 2 की वैल्यू पुट किया हमने 1.96, सिग्मा पुट किया 5 और एन हमने पुट किया 49। फाइनली वी गॉट अ वैल्यू 1.4। तो मार्जिन ऑफ एरर क्या आया आपके पास, 1.4। जी इतना क्लियर है जी? यस सर। जी ठीक हो गया जी। अब सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया था 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल बताएं। तो आपने सबसे पहले जनरल फॉर्म लिखनी होती है, और वो जनरल फॉर्म क्या होती है, 100 into 1 minus alpha % कॉन्फिडेंस इंटरवल अबाउट पॉपुलेशन मीन म्यू। आगे कंडीशन आपने जरूर बताना होती है, और कंडीशन यहाँ पर क्या है कि सिग्मा दिया हुआ है, सिग्मा इज नॉन, तो x बार माइनस जी अल्फा बाय 2 सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट n, दिस इज लोअर लिमिट ऑफ म्यू, अपर लिमिट x बार प्लस जी अल्फा बाय 2 सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट n। और आप इस सारी स्टेटमेंट को पढ़ते कैसे हैं, म्यू लाइज बिटवीन x बार माइनस जी अल्फा बाय 2 सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट n एंड x बार प्लस जी अल्फा बाय 2 सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट n। अब ये तो आपने लिखी उसकी जनरल फॉर्म, आपसे पूछी कौन सी गई थी, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल आपसे पूछा गया था। तो आपने जी नीचे 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल अबाउट पॉपुलेशन मीन बिकम्स, आपने x बार पुट किया जो ऊपर आपने नोट किया हुआ है 24.80 पुट किया, जी अल्फा बाय 2 की वैल्यू पुट की 1.96, सिग्मा पुट किया 5, एन पुट किया 49। यही वैल्यूज आपने राइट साइड पे पुट की, तो मार्जिन ऑफ एरर यानी 1.96 इंटू 5 ओवर स्क्वायर रूट 49, इसे हमने सॉल्व किया था, तो इसकी वैल्यू आई थी 1.4। इसका मतलब 24.80 में से आपने 1.4 को माइनस किया, आपके पास 23.40 लोअर लिमिट, वही 1.4 जब आपने 24.80 में ऐड किया, अपर लिमिट आपके पास 26.20। जी क्लियर जी यहां तक? यस सर। एक्सक्यूज अब अगर आपसे एक चीज कहा जाए कि भाई इस कॉन्फिडेंस इंटरवल को इंटरप्रेट करें, क्या कहेंगे? देखिए हम शुरू में बता चुके हैं पिछले लेक्चर्स में कि जो म्यू है इट्स अ पॉपुलेशन मीन, और जो पॉपुलेशन से रिलेटेड कोई भी चीज होती है, ठीक है, वो फिक्स्ड होती हैं, वो चेंज नहीं होती, ठीक है। जो चीज चेंज होती है वो वेरिएबल कहलाती है, और पैरामीटर्स कभी चेंज नहीं होते। स्टैटिस्टिक जो है वो चेंज होती रहती हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिक चेंज क्यों होती हैं, बिकॉज ऑफ सैंपल, जैसा सैंपल वैसी ही उसकी वैल्यू। तो जब आपको अगर ये कहा जाए कि ये जो कॉन्फिडेंस इंटरवल आया है इसे इंटरप्रेट करें, तो हम इसे इंटरप्रेट यूं करते हैं, वी आर 95% कॉन्फिडेंट that the actual value, the real value of population mean mu will be somewhere between 23.40 and 26.20। जी बात समझ आई? यस सर। जी मैंने ये कहा कि ये जो म्यू है ये कोई दो वैल्यूज नहीं है, ये कोई दो वैल्यूज नहीं होती, ये एक वैल्यू होती है। चूंकि पैरामीटर है ना, पैरामीटर फिक्स वैल्यू होती है और ये सिंगल वैल्यू इसकी होती है। तो हम ये कह रहे हैं कि हमें 95% यकीन है कि जो इस म्यू की असल वैल्यू है, जो कि हमें नहीं मालूम, हम 95% श्योर हैं, 95% हमें यकीन है कि वो 23.40 और 26.20 के बीच में किसी जगह मौजूद है। जी बात क्लियर होगी? यस सर। जी इसी तरीके से अगर हम पिछले कॉन्फिडेंस इंटरवल को इंटरप्रेट करें, तो हम यहां पर भी ये कह सकते हैं कि हमें 90% श्योरिटी है कि ये कौन सी जी एग्जांपल क्या थी, हाँ ऑटोमेटिक फिलिंग हो रही थी, हमें 90% श्योरिटी है कि जो उन बॉटल्स के अंदर फिलिंग हो रही है, एवरेज फिलिंग
ठीक है, जो कि अननोन है, उसकी वैल्यू पॉपुलेशन मीन की इट विल बी समवेयर बिटवीन 478.95 एंड 481.05। ठीक है, तो यहां तक जी आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल को जरा एग्जांपल्स को भी देख लेना है, और इसके जो फॉर्मूलाज हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल के, वो भी आपने जहन में रख लेने हैं। और तीसरी जो चीज है, आपने आर सॉफ्टवेयर को यूज करके जो जी की वैल्यू है, ठीक है, उससे क्यू नॉर्म की कमांड यूज करते हुए आपने जरूर ट्राई करना है। क्यू नॉर्म विद इन पैरेंथेसिस क्या लिखेंगे, 1 माइनस अल्फा की वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। टू हम डिवाइडेड बाय 2 हम इसलिए करते हैं कि हम टू साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड कर रहे होते हैं। ठीक है, कि हमें लोअर लिमिट भी चाहिए होती है, अपर लिमिट भी चाहिए होती है। अगर हमें किसी जगह पे वन साइडेड इंटरवल चाहिए हो, कॉन्फिडेंस इंटरवल, सिर्फ अपर या सिर्फ लोअर, तो फिर हम अल्फा बाय 2 नहीं करते, फिर हम सिर्फ 1 माइनस अल्फा करते हैं। ठीक है जी, बात जी क्लियर है? यस सर। जी, तो ठीक है जी, यहाँ तक जी आपने चीज़ों को देख लेना है ज़रा। तो थैंक यू सो मच जी। और जो सी आर आप लोगों ने जी अटेंडेंस मार्क कर लेनी है, और आप मुझे साथ साथ आपने भेज दिया पिछली भी, तो ये भी अटेंडेंस जो है अपनी एक्सेल शीट के ऊपर भी करते जाएं, लेकिन साथ जो एब्सेंट स्टूडेंट्स हैं उनके रोल नंबर्स वो जितने भी स्टूडेंट्स हों, ठीक है, वो मुझे साथ साथ आपने सेंड कर देनी है। यस सर। चलें जी, और जी शिराज आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? यस सर, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। जी, तो आपका इलाका कौन सा है? सर मुजफ्फरगढ़। मुजफ्फरगढ़। तो अभी इधर हॉस्टल में या मुजफ्फरगढ़ भी आए हुए हैं फिर? सर 2-3 दिन के लिए गया था, वापस आ गया हम लोग। अच्छा अच्छा, तो एक ये स्टूडेंट लाइफ ने